Good afternoon, everyone. So, I will start with the accounting basically. लिख लेना. First important concept is capital. What do you mean by capital? लिख लेना. Capital is contribution by owner, right? Contribution by owner into his business. That contribution may be in cash or in kind. Owner's contribution into business is called as capital. When you start the business, you require funds. You require capital to do the business. Without capital, you cannot do the business. It is a money basically brought in by, right, owner into business. Cash brought in by owner into business is called as, right, your capital. Then लिख लेना, contribution by owner into his business. This is business. And owner. Owner. Owner invest money into the business. That is called as capital. That is called as capital. Technically, it is called as capital. It is his personal, try to understand. Personal savings invested into business is called as capital. So, when I say owner gives something of his into business, that is called as owner's contribution, that is capital. Example लिख लेना. Ram started a business with rupees 10 lakhs, right? He also brought his personal laptop of rupees 15,000, vehicle of rupees 50,000, and right, furniture of rupees 35,000 into business. Into business. This is an example. So Ram started a business. Ram is the owner. He started a business. Business can be anything, right? Rupees 10 lakhs. So he gave 10 lakhs to, right, in cash to the business.
He also brought his personal laptop, rupees 15,000, personal vehicle of rupees 50,000, and furniture of rupees 35,000 into business. If you have to do the business, you require all these things. क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. When you have to do the business, you require all these things. ये चीजें आपके पास होनी चाहिए तो ही आप बिजनेस कर सकते हो. कोई भी बिजनेस करना है तो you need something initially. कुछ तो चाहिए तो जाके आप बिजनेस करोगे, राइट? Those contributions by the owner is called as capital. मराठीत भांडवल म्हणतात. जिनको मराठी समझ में आती है उन्होंने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा. So find out the capital. Find out the capital. लिखो सॉल्यूशन. जो खुद के जेब में से आता है, खुद के रिसोर्स में से आता है, ओनर खुद पैसे डालता है खुद के नाम पे, या जो इन काइंड मीन्स थिंग्स, इन काइंड मीन्स थिंग्स लाइक फर्नीचर, राइट, computer, then vehicle, they are in kind. That is not in cash. Cash or in kind. In cash or in kind. In kind means in things. You don't give cash, you give a thing. ठीक है, that is called as in kind. So total कितना इन्वेस्ट किया है ओनर ने? देखो, ओनर ने बिजनेस को कितना दिया है? इन कैश कितना है? देखो, इन कैश, कैश कितनी दी है? रुपीज 10 लाख. ये तो है ही है, ये तो कैपिटल है ही है. एट द सेम टाइम in kind means which is not in cash. He has given some things, properties, like for laptop of 15,000 plus vehicle of rupees 50,000 plus rupees 35,000. क्या? फर्नीचर. इन काइंड कितना है? रुपीज 1 लाख. So owner has invested together in cash and in kind rupees 11 lakhs into business. ओनर बोलता है मैंने 11 लाख रुपए डाले हैं बिजनेस में. 10 lakhs in cash and 1 lakh in kind. Therefore, total capital is rupees 11 lakhs. So हम बोलते हैं he started business with a capital of rupees 11 lakhs. हमने सुना है कि धीरूभाई अंबानी started Reliance with a capital of 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees, and today it's a entire empire. So जो initial contribution होता है ना, जो owner को खुद के जेब में से डालना होता है, that is called as, right, capital. Obviously capital increase होगा. क्यों increase होगा? Because जैसे आप बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट विल इंक्रीज द कैपिटल. ठीक है, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट. जितना अच्छा प्रॉफिट रहेगा उतना आपका कैपिटल इंक्रीज होगा. अगर आप लॉसेस में रहोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगा, बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया है. सर हम और बिजनेस अलग होते हैं क्या? अकाउंटिंग में यस, द ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट. लिख लेना, इन अकाउंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन अकाउंटिंग, owner of business and owner of business and business are separate. हम अलग मानते हैं. हम किसके अकाउंटेंट है? ओनर के अकाउंटेंट है या बिजनेस के अकाउंटेंट है? वी आर अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, वी आर नॉट अकाउंटेंट ऑफ द ओनर. आप लोगों से क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस अकाउंटिंग में फर्क पड़ता है. अकाउंटिंग में ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट, अलग अलग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अनिल अंबानी is a different than the Reliance in the accounting. Try to understand. Narayan Murthy is a different than the Infosys for the accounting. I am a different than the Ekatram Camp
for the accounting. So accountant is doing accounting for the business and not for the owner. Try to understand. मैं धीरे धीरे इस पे elaborate करूंगा. Accounting, in accounting, owner of the business and business are different, are separate, right? That is, right? They are separate entities. They are separate entities. They have separate existence. They are separate. They are not the same. Try to understand. क्यों ऐसे? Example. Suppose there is a owner. समझने का ट्राई करो. ठीक है? He has business one in Pune. He has a business two in suppose PCMC. He has business three. A person may have different businesses. Suppose in Mumbai. पहले तो बात समझ लेना. Now business one is different than the business two. Business two is different than the business three. All businesses are separate. There are four entities here. One, business one in Pune, business two in PCMC, business three in Mumbai, and owner. Four separate persons in eyes of the accountant. Accountant चारों को अलग अलग देखता है. Because इसका सेल अलग होगा, इसका बिजनेस अलग होगा, इसका प्रॉफिट अलग होगा, इसका बिजनेस अलग होगा, इसका प्रॉफिट अलग होगा, इसका बिजनेस अलग होगा, इसका प्रॉफिट अलग होगा. ओनर अलग. इनकम टैक्स में भी हम अलग अलग डिटेल्स फर्निश करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज को. अभी हर चीज नहीं समझ में आएगी, बट इतना समझ लेना, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट. सो जब मैं बिजनेस वन की बात करता हूं, इट इज सेपरेट देन द ओनर एंड बिजनेस टू एंड बिजनेस थ्री. भले ही बिजनेस टू एंड थ्री आर ओन्ड बाय द सेम ओनर, बिजनेस टू एंड बिजनेस थ्री आर द ओन्ड बाय द सेम ओनर, स्टिल अकाउंटिंग में दे आर सेपरेट. अगर यहाँ पे कोई गुड सेल होते हैं, यहाँ पे कुछ सेल होता है, ये जो इनकम है बिजनेस की, ये बिजनेस वन की इनकम है, बिजनेस टू या बिजनेस थ्री की नहीं. एंड जो मुंबई में सेल होता है, सपोज एक शोरूम है, 4-व्हीलर शोरूम है, उनका पुणे में एक शोरूम है, पीसीएमसी में एक शोरूम है, एंड उनका मुंबई में एक शोरूम है. ऐसे समझो, जो पुणे में सेल होगी कार, वो इनकम पुणे की रहेगी, पुणे के शोरूम की रहेगी, उस बिजनेस की रहेगी. जो पीसीएमसी में सेल होगा, वो इनकम पीसीएमसी के शोरूम की रहेगी, एंड जो मुंबई में सेल होगा, वो मुंबई के शोरूम की रहेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अकाउंटिंग में राइट, हम तीनों को अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं. वी हैव 3 सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंटेंट. पुणे का अलग बुक्स ऑफ अकाउंटेंट्स, राइट, पुणे के अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पीसीएमसी के अलग बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड मुंबई के अलग बुक्स ऑफ अकाउंट. हाँ, मे बी एट द एंड ऑफ द ईयर वी मर्ज देम, हम उनको एक ही करेंगे, बिकॉज ओनर एक ही. तो जब ओनर के पॉइंट ऑफ से देखेंगे, जब हम ओनर के पॉइंट ऑफ से देखेंगे, तो ऑब्वियसली हम उनको मर्ज करेंगे, बट वी आर नॉट वर्किंग फॉर द ओनर. लाइक देयर विल बी 4 अकाउंटेंट्स. पुणे का अलग अकाउंटेंट रहेगा, पीसीएमसी का अलग अकाउंटेंट रहेगा, मुंबई का अलग अकाउंटेंट रहेगा, ओनर का उसका अलग अकाउंटेंट रहेगा. मतलब जब पुणे वाला पुणे के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, मुंबई वाला मुंबई के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, राइट, पीसीएमसी वाला पीसीएमसी के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, एंड ओनर का अकाउंटेंट ओनर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा. या मे बी सिंगल अकाउंटेंट इज वर्किंग फॉर एवरीवन, बट जब वो पुणे के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो पुणे के ट्रांजैक्शंस देखेगा. जो वो पीसीएमसी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो खाली पीसीएमसी के ट्रांजैक्शंस देखेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम वेरी क्लियर इन दिस केस. ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट. अब जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो और समझ में आ जाएगा. ठीक है, ओनर एंड द बिजनेसेस आर सेपरेट. लिख लेना, दे आर सेपरेट एंटिटीज
for the accounting. They are separate entities for the accounting. They are separate entities for accounting. For accounting. This is called as business entity concept, or also called as separate legal entity concept. Separate legal entity concept. Separate entity concept. अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है. अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है. पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ ए अकाउंटेंट. और जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, हम ओनर के लिए नहीं अकाउंटिंग करेंगे, हम किसके लिए अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस के लिए. एग्जाम्पल है, ध्यान देना. अनिल अंबानी गिव्स हिज वाइफ ए चॉपर, या प्लेन गिफ्ट किया, ऐसे समझो. हेलीकॉप्टर क्या किया उसने? गिफ्ट किया. नाउ there's a Reliance, there's a Anil Ambani who is a majority of the owner. मैंने उस पहले भी एक लेक्चर में बोला था, कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स. तो अनिल अंबानी इज अ मेजर शेयर होल्डर, तो अनिल अंबानी इज ओनर, ठीक है. एंड ही गिव्स हिज वाइफ ए चॉपर. नाउ ही परचेज द चॉपर एंड ही गिफ्टेड इट टू हिज वाइफ. दिस इज अ ट्रांजैक्शन, व्यवहार. It is a transaction. Anil Ambani purchased chopper from the company, जो भी है, right, and gifted it to his wife. Is this a transaction of the Anil Ambani, or it is a transaction of the Reliance? This is a transaction of the Anil Ambani, his personal transaction. That chopper is not purchased for the Reliance, not the company. It is purchased for his personal use, उसके खुद के लिए. Try to understand. अनिल अंबानी गोस एंड एक पार्टी में जाता है, राइट, एक पार्टी देता है अपनी फैमिली को. वो पार्टी के लिए ही इंकर्ड सम एक्सपेंसेस. या दूसरा, राइट, उसने उसके बेटे की शादी की एंड ही इंकर्ड ए लॉट ऑफ मनी, राइट, ही इंकर्ड ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी. इज इट द ट्रांजैक्शन ऑफ द रिलायंस और ट्रांजैक्शन ऑफ द अनिल अंबानी? इट इज द ट्रांजैक्शन ऑफ द अनिल अंबानी. अकाउंटेंट ऑफ रिलायंस, ये जो भी पेमेंट किया अनिल अंबानी ने, will not record in the books of Reliance, because that is not for the Reliance, that is for the Anil Ambani, his personal capacity, in his personal capacity. Always remember, we are an accountant of the business and we will be recording the transactions of the business. If Anil Ambani had purchased chopper for the Reliance, Reliance is a buyer, not Anil Ambani. Reliance is a buyer of the chopper. In that case, that transaction would have been recorded in the books of Reliance. But Anil Ambani purchased that chopper for his personal use, उसके वाइफ के लिए किया, not for the business. So that transaction will not be recorded in the books of Reliance. ये समझना important है. Another example. ठीक है, आपको तो जल्दी समझ में आएगा. You own a shop. आप खुद एक शॉप ऑन करते हो एंड योर बुक स्टोर, आप एक बुक्स की दुकान चलाते हो, समझना. यू परचेज बुक्स. आप नवनीत की आपके पास एजेंसी है, नवनीत की आपके पास एजेंसी है, एंड यू परचेज सपोज बुक्स ऑफ ₹10 lakhs फ्रॉम द नवनीत. अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज स्टार्ट होने वाले, स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, एंड देयरफॉर यू नो कि आपको 10 लाख के बुक्स लगेंगे. आपने 10 लाख के बुक्स परचेस किए नवनीत से. यू आर ए बुक स्टोर ओनर. आपके बिजनेस ने, आपके बुक शॉप ने 10 लाख के गुड्स परचेस किए, ध्यान देना, ठीक है. एंड यू परचेस अ टीवी फॉर योर हाउस.
आपने आपके घर के लिए टीवी, आप कहाँ पे सपोज विजय सेल्स में गए, वहां से टीवी परचेस किया, यू एंटर इनटू टू ट्रांजैक्शन, you purchase goods books of rupees 10 lakhs and you purchase TV for rupees 1 lakh. Try to understand. इसमें से जो आपने टीवी परचेस किया है वो आपने आपके शॉप के लिए नहीं परचेस किया, वो आपने आपके घर के लिए परचेस किया है, आपके पर्सनल यूज के लिए किया है. सो दैट टीवी परचेस बाय यू इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस का नहीं है, इट इज योर पर्सनल ट्रांजैक्शन. दैट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के बुक्स में नहीं आएगा वो 1 लाख का टीवी जो परचेस किया है. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो 10 लाख के बुक्स परचेस किए आपने, बुक्स नवनीत से जो परचेस किए हैं वो बिजनेस के लिए, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, वो रहेगा. सो हमेशा जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे हम चेक करेंगे, इज इट बिजनेस ट्रांजैक्शन और इज इट ए पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर. If it is a business transaction, then only we will record. If it is a personal transaction of the owner, we are not concerned about that. Business is not concerned about that. Owner कहाँ पे right party करने जाता है, it is not for the business and he makes payment over there, right? Dinner का जो भी payment रहेगा उसने किया, जो भी वो पार्टी का खर्चा आया उसने किया. Is it a business transaction? No. हम ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट अगर वही उसने उसके जितने सारे कस्टमर्स हैं उनके लिए पार्टी रखी, उनके जो डीलर्स है, हमारे बिजनेस के जो भी डीलर्स हैं, हमने उनके लिए पार्टी रखी कि एक साल में हम सब हमारे कस्टमर, मेजर कस्टमर्स को पार्टी रखते हैं, हमारे सप्लायर्स के लिए पार्टी रखते हैं जिनसे हम परचेस करते हैं, एक गेट टुगेदर टाइप. यस, इट इज फॉर बिजनेस, इट इज फॉर द बिजनेस. वो जो भी खर्चा रहेगा, जो भी बिल आता है 1 लाख 2 लाख जो भी बिल आएगा, business will record it. Try to understand. Because that expense, that 1 lakh rupees paid, right, 2 lakhs rupees paid for that party is for the business. Try to understand. दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो कितना माइन्यूट अकाउंटिंग होती है. सपोज इंडिगो को वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, बुकिंग के टाइम क्या पूछता है, देखो बुकिंग के टाइम, ठीक है. सपोज हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब पुणे से दिल्ली सपोज, चलो देहरादून, जो भी मिला वो लिया मैंने, ठीक है. कुछ तो अलग तारीख लेते हैं हम, ठीक है, देखते हैं. देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान देना. हमने इसमें से कंटिन्यू जो भी मिली वो कंटिन्यू, इतना सोचा नहीं. ओके, ठीक है, ठीक है, देखते हैं. सपोज हम कुछ, अब मैं मेरा डिटेल डाल देता हूं. मैंने यहाँ पे मेरा मेल आईडी डाल दिया. क्या पूछा इसने, जीएसटी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल, क्या लिखा है पढ़ो, जीएसटी नंबर, जीएसटी ईमेल, जीएसटी कंपनी नेम. मतलब इफ जीएसटी इज नॉट ऑप्शनल, ठीक है, अगर जीएसटी नंबर नहीं है, सपोज मैंने वो कर दिया नहीं है, अब अच्छा ये पूछता रहेगा ये सब चीजें, स्किप एंड लॉगिन. अच्छा ये कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो. सो देखते हैं. मुझे ये दिखाना है कि ये पूछता है इज इट ए फॉर बिजनेस और इट इज फॉर ए पर्सनल, ये मुझे दिखाना है आपको. वैसे भी अभी फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हम वन वे ट्रिप जाते हैं. देखता है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड. इट आस्क यू द क्वेश्चन, इज इट अ बिजनेस ट्रिप और इट इज ए
पर्सनल ट्रिप, ये मुझे दिखाना है। ये देखो मैंडेटरी डिक्लेरेशन, ये सब अभी टेकिंग टाइम, ठीक है। तब तक ये रिफ्रेश हो जाएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, ध्यान देना। सो आप जब बुक करते हो, एग्जाम्पल यू आर ए ओनर, you are a owner, you are in Pune, you have to go to Delhi for family trip, and you book the right flight, आपने राइट फ्लाइट बुक की, आपने पेमेंट किया, मुझे बोलो दिस ट्रांजैक्शन, यू आर ए ओनर ऑफ द बिजनेस, यू इनकर्ड सम एक्सपेंसेस, आपने कुछ पेमेंट किया है। सपोज आपके पूरे फैमिली का पैकेज 50,000, राइट, आने जाने का पकड़ के सपोज एग्जांपल 25,000। दिस ट्रैवल एक्सपेंसेस, जो भी आप घूमने जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, दिस इज फॉर पर्सनल, इट इज पर्सनल, एंड देयरफॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये आएगा नहीं। बट अगर यही आप दिल्ली में कुछ एग्जीबिशन के लिए जाते हो या मीटिंग के लिए जाते हो, फॉर बिजनेस मीटिंग, एंड यू पे सपोज एग्जांपल 20,000, पकड़ के चलो, you pay 20,000, this is personal, this is business, for the business, this will be recorded in the books of business, this will not be recorded in the books of business। ये याद होना चाहिए कि हमें ये समझना है कि इज इट फॉर द बिजनेस और इट इज फॉर द पर्सनल, ये हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन अकाउंटिंग owner of the business and businesses are separate entities, they are treated as a separate persons, and therefore we should understand that we are here to record business transactions and not personal transactions। business entity concept or business, right, separate entity concept elaborates that owner is a different, business is a different, ओनर के ट्रांजैक्शंस अलग, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग, we have to segregate, we have to separate the transactions, we have to record, right, business transactions, जिसमें business is a party, ट्रांजैक्शन में दो बंदे होते हैं, एक बायर एंड एक होता है सेलर, बराबर, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर तो दूसरा होता है सर्विस रिसीवियर, राइट, रिसिपिएंट। लाइक एग्जांपल, हम फ्लाइट बुक करते हैं इंडिगो की, तो इंडिगो इज ए सर्विस प्रोवाइडर एंड वी आर सर्विस रिसिपिएंट। समझ में आ रहा है? वी परचेज बुक्स फ्रॉम द नवनीत, नवनीत इज ए सेलर, वी आर ए बायर। तो ट्रांजैक्शन में दो बंदे रहेंगे, एक सेलर बायर, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसिपिएंट। उस दोनों दोनों में से एटलीस्ट एक तो बिजनेस होना चाहिए, दोनों में से एटलीस्ट एक बिजनेस होना चाहिए, तो ही बिजनेस को क्या करेगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस परचेज समथिंग, बिजनेस सेल समथिंग। समझ में आ रहा है? बिजनेस टेक सर्विसेज फ्रॉम समवन, बिजनेस गिव सर्विसेज टू समवन। अगर बिजनेस इन्वॉल्व है तो ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज दैट ट्रांजैक्शन will be ignored, that will not be recorded, and that is given by which concept? Business entity concept, the first concept and very important concept, सबसे important concept is a business entity concept। ध्यान देना आगे, ठीक है। और हमें इस कंसेप्ट में अंदर जाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल समझा, कैपिटल 11 लाख कैसे लाया। अनदर एग्जांपल, ओनर सपोज
Sham started business with rupees 10 lakhs, of which, out of which rupees 3 lakhs have been borrowed from a friend. Or relative और फ्रॉम बैंक, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है. he also he also introduces he also introduces his, right, he also introduces his personal computer valued at rupees 30,000 and his shop valued at rupees 15 lakhs into business. ठीक है. उसने क्या किया बिजनेस करने के लिए? he brought his personal computer and his shop. शॉप भी चाहिए, रेंट पे लेने से मेरे घर, मेरा खुद का शॉप है, मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा. ठीक है. फाइंड आउट द कैपिटल. कोई मुझे बोल सकता है कितना कैपिटल है? फाइंड आउट द कैपिटल. ट्राई इट. चैट बॉक्स में आंसर लिखो. व्हाट यू थिंक? इट मे बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम. रॉन्ग होने से डरना नहीं है. वी आर लर्निंग. और हम आप सब चीजें सीख रहे हो कि आपको हर चीज पता है, ऐसे नहीं है. ओके, गुड. ओके, ध्यान देना. कैपिटल इज योर पर्सनल. आप खुद का जो है वो कैपिटल होता है. किसी दूसरे से लेके बिजनेस में डालने को कैपिटल नहीं बोलते. दैट इज अ लोन. लोन इज डिफरेंट, कैपिटल इज डिफरेंट. लोन मतलब किसी और से पैसे लेके बिजनेस में डाल रहे हो, दैट इज लोन. ठीक है. सो यहाँ पे लिखना सोल्यूशन. डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द आंसर्स. ठीक है. लेट्स सी. सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है देखो. ठीक है. हाँ. द सोल्यूशन इज टोटल कैश. उसने कितनी कैश डाली है? 10 लाख. उसमें से उसने लोन कितना लिया? 3 लाख. सो ट्राई टू अंडर, आपको 3 लाख कभी ना कभी तो रिपे करना पड़ेगा. ऑब्वियसली कैपिटल भी रिपे करना पड़ेगा. हम बिजनेस है. बिजनेस को ओनर ने खुद के जेब से कितना दिया है, दैट इज अ कैपिटल. ठीक है. सो इट राइट, ध्यान देना. देखते हैं यहाँ पे. ठीक है. राइट. नो नो, लोन इज डिफरेंट. अकाउंटिंग में लोन इज डिफरेंट. बिजनेस विल रिपे इट. बिजनेस अलग से रिपे करेगा 3 लाख. ठीक है. इट इज नॉट पर्सनल लोन. वो बिजनेस के लिए लोन लिया है उसने. ठीक है. ध्यान देना. देयरफॉर
ठीक है. कैपिटल इन कैश, कैपिटल इन कैश is 7 lakhs. Then plus capital in kind, in kind 10 लाख की बिल्डिंग, सॉरी 15 लाख का शॉप एंड 30,000 का कंप्यूटर, 15 lakhs 30,000. टोटल इज 22 lakhs 30,000. Total capital is therefore investment by owner. ओनर, ओनर ने खुद के इसमें से कितना डाला है? 22 lakhs 30,000. एंड रुपीज 3 lakhs is loan of a business, is loan of a business. Is not a capital of the business. Capital is 22 lakhs 30,000. Loan is 3 lakhs. उसको लोन बोला जाएगा. उसको क्या बोला जाएगा? लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम रिलेटिव, लोन फ्रॉम बैंक. ऐसे अलग क्यों? देखो पहले हमें क्या, देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है, ठीक है. हमें रीपे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो बिजनेस बंद होगा, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. दिस इज बिजनेस एंड दिस इज ओनर. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. ओनर ने जो पैसे डाले वो कैपिटल है, और ये पैसा वो कब निकालेगा? कब निकालेगा पैसा? उसने जो बिजनेस में पैसा डाला, इट इज अ लॉन्ग टर्म. जब तक बिजनेस चलेगा तब तक पैसा रहेगा वो. इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. जब वो पैसा निकालेगा मतलब ही इज राइट क्लोजिंग डाउन द बिजनेस. नो, जो पैसा उसने परमानेंट बेसिस पे डाला है, दैट विल बी देयर टिल द बिजनेस लास्ट. जब तक बिजनेस चलेगा तब तक है. बट लोन फ्रॉम ए फ्रेंड इज टू बी रिपेड विद इन लाइक 1 year, 2 years, 3 years, 10 years डाउन द लाइन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली जब बिजनेस बंद करने का टाइम आएगा, जब बिजनेस बंद करने का टाइम आएगा, पहले लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वो थर्ड पार्टी है, ओनर नहीं है. और उसके बाद ओनर को पे किया जाएगा. हम बिजनेस है, हम ओनर को बोलेंगे तूने 22 lakhs 30,000 बिजनेस में डाले. ओनर को क्या बोलेंगे? तेरी इन्वेस्टमेंट 22 lakhs 30,000 की, मतलब कैपिटल 22 lakhs 30,000 का है, एंड लोन उठाया है 3 लाख का. अगर बिजनेस बंद होता है तो 3 लाख पहले पे किए जाएंगे, एंड उसके बाद ओनर को पेमेंट किया जाएगा. उसके बाद ओनर को पेमेंट किया जाएगा. देयर इज सीक्वेंस. जब बिजनेस बंद होता है तो किसका पेमेंट पहले किया जाएगा? दैट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, दैट इज डिसाइडेड बाय द लॉ. उसके लिए लॉ है. तो पहले ये लोन वगैरह जो थर्ड पार्टीज होते हैं ना, ओनर के सिवा, उनको पहले पेमेंट करना पड़ता है. एंड देयरफॉर लोन इज डिफरेंट एंड कैपिटल इज डिफरेंट. कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म इन द नेचर. लोन इज नॉट ए लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब जब तक बिजनेस चलेगा तब तक कैपिटल रहेगा. लोन एक टाइम के लिए होता है, राइट? यू हैव टू रीपे इट, यू हैव टू रीपे, इवन यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट. आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. मे बी आप ईएमआई बेसिस पे रीपे करोगे, मंथली, ईयरली या लमसम में, एज पर योर एग्रीमेंट विद योर फ्रेंड और योर रिलेटिव और योर बैंक. सो मनी borrowed from someone else is a loan, and money taken from the owner from his personal savings is a capital. And there's a difference between capital and loan. कैपिटल रिपे होगा, उसको डिफॉल्ट नहीं बोला जाता. कैपिटल, सपोज बिजनेस डिफॉल्ट करता है कैपिटल पे, इट इज नॉट ए डिफॉल्ट. बट अगर लोन रिपे नहीं करते ना, वो डिफॉल्ट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग है पूरे. इसलिए जब जो फ्रेंड से पैसे लिए, समझ में आ रहा है, वो जो बिजनेस में ला रहा है, फ्रेंड से किस लिए पैसे लिए होंगे? राइट, आई वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, राइट, गिव 3 lakhs rupees. समझ में आ रहा है? बिजनेस विल रिपे इट बिकॉज द मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस. एग्जांपल,
बिजनेस है और ओनर ने उसके बेटी के शादी के लिए लोन लिया, ओनर ने उसके बेटी के शादी के लिए लोन लिया, ओनर हैज टू repay it, business will not repay it because that loan is not for business. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस के लिए जो लोन है वो बिजनेस का लोन है, वो बिजनेस रिपे करेगा। एंड ओनर ने खुद के लिए जो लोन लिया है वो तू तेरा देख भाई, हमें मत बोल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग इतनी क्लियर है, ओनर अलग एंड बिजनेस अलग, वी डोंट मिक्स। हम मिक्स नहीं करते, क्यों नहीं करते, धीरे धीरे समझेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट ढूंढना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है ओनर की। देन आगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, भले ही, हाँ मैं मानता हूं अकाउंटेंट के पास, बिजनेस के अकाउंटेंट के पास 10 लाख कैश है, हमारे पास क्या है ध्यान देना, मैं इसे लिखता हूं, व्हाट वी ओन। बिजनेस क्या ओन कर रहा है, कैश 10 लाख, अकाउंटेंट के पास 10 लाख कैश है, इसमें से किसने कितनी दी है, ओनर, ओनर ने 7 लाख दिया है, बराबर। एंड लोन कितना है, 3 लाख, ठीक है। हम अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड 10 lakhs, उसमें से 7 lakhs फ्रॉम द ओनर, 3 lakhs फ्रॉम हिज फ्रेंड और फ्रॉम बैंक और फ्रॉम रिलेटिव। ये 10 लाख अगर रिपे करने का टाइम आता है तो 7 लाख किसको देना पड़ेगा, ओनर को, एंड 3 लाख किसको देना पड़ेगा, जिससे हमने लोन उठाया उसको। कभी ना कभी तो रिपे करना पड़ेगा, ये मैं मानता हूं, पहले लोन रिपे करना पड़ेगा, उसके बाद ओनर को रिपे करेंगे। उल्टा कभी नहीं होता कि पहले ओनर को दे रिपे कर रहे हो फिर लोन, तो ऐसे कितने जुगाड़ होंगे, फिर लोगों से पैसे लेंगे और खुद का पैसा लेके चले जाएंगे। हम सब साथ में बिजनेस करेंगे, मैं बोलता हूं हम सब साथ में बिजनेस करेंगे, सब पैसे डालेंगे और मैं मेरा पैसा लेके चला जाऊंगा, आप आपका देखो। ऐसे नहीं होता है, पहले दूसरों का पैसा देना पड़ेगा फिर आपको आपका पैसा मिलेगा। यू शुड बेयर द रिस्क, अगर आप बिजनेस करो तो यू शुड बेयर द रिस्क, ठीक है। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। बिजनेस ऑल्सो रिसीव्ड कंप्यूटर ऑफ 30,000। अभी किसका कंप्यूटर होगा, बिजनेस का हो गया, किसका हो गया, बिजनेस का। अगर बिजनेस बंद करना पड़ेगा तो एक कंप्यूटर किसको देंगे, ओनर को देंगे। सो ये 30,000 किसने दिया आपको, ओनर ने। आपके पास जो 30,000 आया है ओनर ने दिया है, कभी ना कभी ओनर को 30,000 देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपने यही किसी लैपटॉप शोरूम से परचेस किया होता 30,000 पे, आपको लैपटॉप वाले को 30,000 देना पड़ता ना। तो जब ओनर ने हमें 30,000 का कंप्यूटर दिया है तो उसको कभी ना कभी हमें 30,000 देना पड़ेगा ना। वो बोलता है आज मत देना, कभी ना कभी हम बोलते हैं भाई तेरा कैपिटल मान ले। जब बिजनेस बंद करेगा पड़ेगा तब 7 लाख देंगे, उसके साथ कंप्यूटर के भी 30,000 तुझे देंगे। देन ही हैज आल्सो गिवन शॉप ₹15 lakhs। अब ये शॉप किसके नाम पे हो गया, बिजनेस के नाम पे हो गया। अगर बिजनेस ने किसी और से शॉप लिया होता, ओनर के सिवा किसी और से, तो बिजनेस को 15 लाख देने पड़ते ना उसको। अब हमने किससे लिया है, ओनर से लिया, तो ओनर को कभी ना कभी 15 लाख देने पड़ेंगे ना। या तो 15 लाख दोगे या उसको बाद में शॉप रिटर्न करोगे, भाई तेरा शॉप ले ले, जब बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो ये किसने दिया है, ओनर ने। सो जो हमारे बिजनेस के पास टोटल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये हमारी प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। 10 लाख की कैश, 30,000 का कंप्यूटर, 15 लाख का शॉप, टोटल 25 लाख 30,000 की प्रॉपर्टी है, जिसको एसेट्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, एसेट्स। बिजनेस की एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है 25 लाख 30,000। ये फ्री में तो नहीं आए, फ्री में तो नहीं आए ना। आप बोलोगे सर फ्री में आए ना, हमने कुछ पेड नहीं किया। अरे आज नहीं पेड किया, कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये किसने दिया है, ओनर ने इसमें से दिया है। ये जो हमारे पास बिजनेस ओन, ओन मतलब मालकी आपका है, 25 लाख 30,000 के असेट्स, प्रॉपर्टीज बिजनेस के पास है। उसके लिए कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा। ओनर को कितना पे करना है, ओनर को पे करना है 22 लाख 30,000।
एंड लोन वाले को कितना पे करना है? 3 लाख। टोटल कितना पे करना है? 25 लाख। सपोज आज ही बिजनेस बंद करते हो, आज ही बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही बंद किया, हमारे पास असेट्स है 25,30,000 की, उसमें से 22,30,000 ओनर को बोलेंगे तूने डाला तो तू तेरा लेके जा, पहले लोन वाले को बोलेंगे तू तेरा 3 लाख लेके जा। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज 25,30,000 की है, उसमें से लोन वाले को बोलेंगे तू तेरा 3 लाख लेके जा, और ओनर को बोलेंगे तू तेरा लेके जा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, these are obligation, what we owes. What we own and what we owes, मतलब हमें किसको पे करना है? बिजनेस owns assets। अब बिजनेस के पास कैश है, बिजनेस के पास बिल्डिंग है, बिजनेस के पास कंप्यूटर है, ये बिजनेस का है। आपको दिखेगा कैश, कंप्यूटर, लाइक शॉप दिखेगा, बिजनेस का है। ओन, फ्री में कोई चीज नहीं आती है, एक छुपा हुआ उसके पीछे एक एस्पेक्ट है कि इनके लिए हमें किसी ना किसी को पे करना है, आज नहीं तो कल पे करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये जो 25,30,000 के असेट्स है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वर्ड इज वेरी रॉन्ग बट स्टिल बच्चों को जल्दी समझ में आता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये फ्री में तो नहीं आए, किसी ने किसी से उधार पे तो लिए है, कभी ना कभी रिटर्न तो करना पड़ेगा। ओनर को उसका शॉप रिटर्न करना पड़ेगा, उसका कंप्यूटर रिटर्न करना पड़ेगा, 10 लाख उसने जो 7 लाख उसने जो डाले उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, जिससे लोन लिया उसको 3 लाख देने पड़ेंगे। दैट इज योर obligations, that is total obligations, if you check is how much? 25,30,000, जिनको बोला जाता है liabilities। and in accounts assets are always equal to liabilities। ये लिख लेना एग्जाम्पल, अभी जो ये लिखा है ना उसके नीचे लिख लेना, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना। मैं हर एग्जाम्पल प्रूव करूंगा आपको, डोंट वरी। हमें यही प्रूव करना होता है कि असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी। असेट्स मतलब जो आपके पास है और उसके लिए आपको किसी ना किसी को देना पड़ेगा, वो होते हैं लाइबिलिटीज। मैं आपको हर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, सो डोंट वरी। मे बी इनिशियली यू मे फाइंड डिफिकल्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिंपल है। सो कैपिटल को हम लाइबिलिटी बोलते हैं, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। हमें ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा, वो कभी ना कभी रिटर्न करना पड़ेगा। लिया है तो चुकाना पड़ेगा, ये सुना है ना आपने टर्म, लिया है तो चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा मतलब वो लाइबिलिटी है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। एक मूवी आई थी ईएमआई, लेना है तो चुकाना पड़ेगा, आई थिंक संजय दत्त था उसमें, आई डोंट नो कैसी मूवी थी। चुकाना पड़ेगा लाइबिलिटी। लोन लिया है, पैसे आए हैं, आप हैप्पी हो, पैसे आए, फ्री में नहीं आए, रिटर्न करने पड़ेंगे, लाइबिलिटी है। पैसे आए, प्रॉपर्टी आ गई, 10 लाख की कैश आ गई सपोज, उसके साथ एक ऑब्लिगेशन आ गया, कभी ना कभी वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। एक पता है ना, राइट, यू गेन ओनली इफ यू सैक्रिफाइस, विदाउट सैक्रिफाइस देयर इज नो गेन, ये तो पता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, मतलब एक चीज के साथ दूसरी चीज जुड़ी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दूसरी चीज देखने का ट्राई करो। जब हम लोन लेते हैं तो हमारे सामने 10 लाख दिख रहे हैं, 20 लाख का लोन लिया, 50 लाख का लोन दिया, हमें पैसा दिख रहा है, बट ये पैसे के पीछे एक और चीज छुपी है, क्या? ये रिटर्न भी करना है। ये रिटर्न जो करना है, ये जो आपका ऑब्लिगेशन है, ये आपकी जिम्मेदारी है, कभी ना कभी रिटर्न करना है आपको। दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। कोई भी चीज फ्री में नहीं आती। एग्जाम्पल, मैं आपका कस्टमर हूं, अपनी बुक शॉप ओपन किया है, मैंने आपसे 10,000 के बुक्स परचेस किए, मैंने आपसे 10,000 के बुक्स परचेस किए, मैं बोलता हूं 1 मंथ में आपको पे करता हूं, 1 मंथ के बाद पे करता हूं, गिव मी क्रेडिट पीरियड, उधारी पे 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे दो। उधारी मतलब क्रेडिट,
मुझे एक मंथ का क्रेडिट दे दो, आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ. आई हैव गॉट बुक्स. मेरे पास जो बुक्स आए ना, जो मेरे पास बुक्स है, ये जो बुक्स मैंने लिए हैं, ये जो दिख रहा है मेरे पास, आई ओन दिस, ये मेरे हैं अब. बट इसके लिए मुझे पे करना है, मुझे पे करना है, लाइबिलिटी है. मैंने मोबाइल लिया, मैंने मोबाइल लिया, 50,000 का मोबाइल लिया, उसमें से 10,000 मैंने पेड किए, 40,000 का लोन लिया है. आपने सुना होगा कि मोबाइल्स कैन बी परचेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ये तो आपको पता है. 50,000 का मोबाइल लिया, 10,000 डाउन पेमेंट किया, ये ले ले 10,000, 40,000 ईएमआई. तो मोबाइल जो आया है ना, ये असेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये आई ओन दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी. इसमें से 10,000 मैंने पेड किया है, मुझे फिर से 10,000 वो पे नहीं करने, अब खाली 40,000 पे करने हैं. मैंने 50,000 का मोबाइल लिया, 10,000 पेड किए. नाउ आई एम ऑब्लिगेटेड ओनली टू पे रिमेनिंग 40 lakhs, 40,000. दैट इज माई लाइबिलिटी. जो पे करना बाकी है, जो पे करना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है. जो पेड किया है वो लाइबिलिटी नहीं. 50 का मोबाइल लिया, उसमें से 10,000 पेड किया, वो लाइबिलिटी नहीं. वो हो गया ना, अब कहां से पे करोगे, हो गया पेड, खाली 40,000 पे करना बाकी है. बाद में मैंने 20,000 पेड किए, 40,000 पे करने थे. पहले टोटल कितने पे करने थे, 50. 10,000 तुरंत पेड किए, तो मेरी लाइबिलिटी 40 की है. बाद में मैंने 20,000 पे किए, 40 में से 20 पेड हो गए, अब मेरी लाइबिलिटी बाकी 20 है. फिर मैंने 15 पेड किए, 20 बाकी थे, 15. अब मेरी लाइबिलिटी 5,000 ही बाकी, जितना पे करना बाकी है. फिर मैंने 5,000 पेड कर दिए, मेरी लाइबिलिटी 0 हो गई. अब मुझे कुछ नहीं पे करना मोबाइल के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा इमेजिन करो. सो एक है असेट, दूसरी है लाइबिलिटी. मैं डेफिनेशन लिख के दूंगा, उसमें और अंदर जाना है, टाइप्स ऑफ असेट्स, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज. मैं खाली ये समझा रहा हूं कि हमें एक चीज दिखती है, हमारे पास मोबाइल है, बट दूसरी साइड नहीं दिखती कि इसके लिए पेमेंट करना है. सर अगर आपने 50 के 50 कैश में दिए तो? मैं गया मोबाइल शॉप पे, मैंने बोला मुझे मोबाइल चाहिए, आई परचेज मोबाइल फॉर 50,000, कैश दे दी या कार्ड स्वैप किया, ठीक है, पेमेंट कर दिया. आई एम ऑब्लिगेटेड टू पे टू द सेलर. मुझे अब सेलर, मैं कभी सेलर से रास्ते में जाते हाई बाय करता हूँ, वो मुझे बोलेगा कि तुझे तेरे से 50,000 आने बाकी है, 40,000 आने बाकी है. वो बोल भी नहीं सकता, क्यों? बिकॉज मैंने उसको पेमेंट किया है. मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं भाई. मैंने फ्लैट परचेस किया 100 लाख का, 1 CR का. ध्यान देना, मैंने 100 लाख का फ्लैट परचेस किया. सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, 20 लाख मेरे जेब में से डाले, कैपिटल टाइप, खुद के जेब में से. 80 लाख अभी भी पे करने. तो वो बिल्डर क्या बोलता है, 80 लाख का लोन करो. मैं बैंक में गया, बैंक वाले को बोला मुझे 80 लाख का लोन चाहिए. क्या बोला बैंक वाले को, 80 लाख का लोन चाहिए. बैंक ने 80 लाख का लोन दिया. ये लोन किसको मिलेगा, ये पैसा किसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, बिल्डर को मिलेगा. मैंने बिल्डर से फ्लैट लिया 100 लाख का, 20 लाख मैंने डाले, ठीक है, अभी भी 80 लाख पे करने. बिल्डर बोलता है लोन करवाओ. लोन करने से क्या होता है, मैं बैंक में जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे 80 लाख का लोन चाहिए, एंड सपोज मेरी इनकम बैठती भी है, बेगर को लोन नहीं मिलेगा. इफ यू आर अर्निंग गुड मनी यू विल गेट द लोन, ठीक है. सो मुझे लोन मिल गया 80 लाख का. ये मैं बैंक में जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे इस बिल्डर को पे करने 80 लाख, मैंने ये फ्लैट परचेस किया, मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, मैं सब बाकी जो फॉर्मेलिटीज वो करूंगा, ठीक है. बैंक वाले क्या करेंगे, मैं सब HDFC में गया, HDFC और मैंने परचेस किया फ्लैट, सपोज एग्जाम्पल एमनोरा, ठीक है. मैं HDFC में गया, मैंने बोला 80 लाख मुझे पे करने, मुझे लोन दे दो. तो HDFC वाले डायरेक्टली एमनोरा वालों को 80 लाख देंगे मेरे नाम पे, ये ले लो प्रसाद धवरे के लिए ये 80 लाख. 20 लाख मैंने पेड किया, 80 लाख मेरे लिए बैंक ने पेड किया. अब अमनर वालों को मुझे कुछ पे करना है क्या, उनको कुछ नहीं पे करना, उनको उनके 100 लाख मिले, मेरे से 20 लाख, एंड मेरे बैंक ने उनको 80 लाख दिए. तो अमनर वाले मुझे कुछ नहीं बोल सकते, बट मुझे बैंक को 80 लाख पे करने हैं, मेरी लाइबिलिटी बन गई 80 लाख की. चलो अमनर वालों को नहीं, बट बैंक वालों को तो 80 लाख पे करने ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो माय लाइबिलिटी, इसको 80 लाख का लोन को लाइबिलिटी बोला जाएगा.
कि चुकाना है, रीपे करना है, आई एम ऑब्लिगेटेड, मुझे पे करना पड़ेगा, आई कैन नॉट एस्केप दैट लाइबिलिटी। नहीं नहीं मैं नहीं पे करूंगा ऐसे बोल के नहीं चलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैंने आपसे बुक्स परचेस किए 10,000 के, मैंने बोला आपको एक मंथ के बाद पे करना है, तो इट हैज, जब मुझे बुक्स मिल रहे हैं तो बुक्स के साथ एक लाइबिलिटी भी आ रही है कि मुझे 10,000 पे करने हैं। जब मैंने फ्लैट परचेस किया 100 लाख का, उसके साथ वो असेट है, मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, 100 लाख की प्रॉपर्टी है, उसके लिए एक लाइबिलिटी बन रही है। कितने की लाइबिलिटी बन रही है पता है आपको? 80 लाख की। मुझे 80 लाख चुकाना है, एचडीएफसी वालों को देना है 80 लाख। हाँ इंटरेस्ट तो देना है, ऑब्वियसली आई डू एग्री, मैं मानता हूं वो देना है, इंटरेस्ट अलग है, मैं उसमें अलग कंपोनेंट पाता हूं, बट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि फॉर एवरी एसेट देयर विल बी सम लायबिलिटी, देयर विल बी लायबिलिटी, ठीक है। और अकाउंट्स में हमें क्या प्रूव करना होता है पता है? योर एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो लिखा है ना इक्वल टू, ये जो लिखा है 10 lakhs 30 lakhs 15 lakhs, टोटल 25 lakhs 30,000, ये मेरी एसेट्स है। से 22 lakhs 30,000 मेरा कैपिटल है, 3 lakhs मेरा लोन है। इसको बैलेंस शीट बोला जाता है, इसको बैलेंस शीट बोला जाता है। वो शीट जो बैलेंस होती है, इक्वल होती है, वो शीट जो बैलेंस होती है, इक्वल होती है, उसको बैलेंस शीट बोला जाता है, विच टॉक्स अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑब्वियसली मैंने अभी तक एसेट की एक्चुअल डेफिनेशन भी नहीं बोली है, ना ही मैंने लायबिलिटी की डेफिनेशन बोली है, मैं खाली इतना समझा रहा हूं, अगर आप कोई चीज उधारी पे लेते हो तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है, आपको उसको रिटर्न करना पड़ता है। आप गए स्कूल कैंटीन में, वहां पे आपने 50 रुपए का कुछ परचेस किया, आपके पास पैसे नहीं, आप बोलते हो भैया मैं कल परसों दे दूंगी। जब आप ऐसे बोलते हो तो यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे दैट पर्सन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जब भी। इट इज योर लाइबिलिटी, इट इज योर लाइबिलिटी। आपने 50 पेड़ किए, आपके पास 20 रुपए, आप बोलते हो 20 ले लो भैया, 30 में कल दे दूंगी, मेरे पास नहीं है, या दे दूंगा। 30 की लाइबिलिटी बन गई आपकी, जो पे करना बाकी है वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, एंड ये वर्ड आप डेली 10 बार बोलोगे, एसेट डेली 10 बार मिनिमम बोल रहा हूं, मतलब इतने हैबिचुअल हो जाओगे आप। मे बी आज नहीं समझेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यही तो वर्ड के साथ हमें खेलना है। सो कैपिटल, जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिजनेस, मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, और ओनर ने हमें 10 लाख दिए, कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा ना, कभी ना कभी जब उसको देना पड़ेगा ना। कब देना पड़ेगा? जब बिजनेस बंद होगा, देना तो पड़ेगा। तो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। जो फ्रेंड से 3 लाख रुपए लिए, कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा बिजनेस को। 3 lakhs इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जब असेट्स आ रही है ना, तो लाइबिलिटीज भी आ रही है, चुपके से आ रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डोंट बाय मेनी थिंग्स ऑन लोन, बिकॉज उनको पता है असेट तो आ जाएगी, बट उसके साथ लाइबिलिटी भी आएगी, वो तो रिटर्न करना पड़ेगा। फ्री में थोड़ी आ रही कार, आपने कार ले ली लोन पे, तो लोन भी आ रहा है ना, टेंशन आ रहा है ना। लाइबिलिटी मतलब चिंता, लिख लेना, ये चिंता है, कभी ना कभी रिटर्न करना है। जब आपने कार ली तो आपको टेंशन भी, यार ये चुकाना पड़ेगा। फ्लैट लिया, आपको टेंशन है, लोन चुकाना पड़ेगा। आपने मोबाइल लिया, 40,000 चुकाना पड़ेगा आपको, चिंता है, वो लाइबिलिटी है। जब 10,000 के बुक्स लिए मैंने आपसे, मुझे वो मेरा ऑब्लिगेशन है, मुझे पे करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। कैपिटल के लिए मैंने बोला कैपिटल वो होता है जो ओनर खुद के जेब से देता है, एंड देयरफॉर नीचे लिख लेना, देयरफॉर देयरफॉर capital is to be repaid when business is, right, stopped, or when business is shut down. Repaid to owner when business is closed. Therefore capital is
liability of business, liability of business towards owner, towards owner. ठीक है. अच्छा, किसी के डाउट्स है? एनीवन हैज डाउट? कल आपका मैथ्स का लेक्चर रहेगा एंड आई विल अकॉर्डिंगली शेड्यूल. शायद से मुझे लगता है मैम 11 to 12, 12:30 लेगी. अकाउंट्स में अपना टाइमिंग 2:15 to 3:15 till 15th August. उसके बाद आई नीड टू इंक्रीज द टाइम ऑब्वियसली. एंड मैथ्स शायद से मैडम 11 to 12 या 12:30 ले लेगी. बिकॉज जब अभी मैं जब लेक्चर कर रहा हूँ मैम 12 का लेक्चर ले रही है. ठीक है. और जब मैम लेक्चर लेती है तब मैं 12 का लेता हूँ. तो ऐसे रूटीन वाइज रहता है. ठीक है. सो कल से आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. नो नो सर, 11th पोर्शन इज चेंज. आई डिडंट गेट यू. मतलब किस एंगल से बोल रहा है? इज 11th पोर्शन? यस ऑब्वियसली. इफ यू चेक द प्रीवियस, वो तो लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है ना. जो अभी 12th में बच्चे हैं ना, उनके लिए 11th में ही चेंज हुआ था. यस इट इज चेंज सिलेबस. फॉर अकाउंट्स नथिंग हैज चेंज्ड. फॉर अकाउंट्स नथिंग हैज चेंज्ड. कुछ चेंज नहीं हुआ है. जस्ट जीएसटी वगैरह नया आया है. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. मतलब जो मैं पहले सिखाता था वही सेम है. ठीक है. अच्छा, किसी के और डाउट्स? तो खुद के जेब से जो लाए डालोगे वो कैपिटल. कुछ भी डालो. फिर आपके पास चेयर पड़ी है, आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, कैपिटल. टेबल पड़ा है, बिजनेस के लिए यूज करते हो, कैपिटल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. एक एग्जाम्पल. कल मुझे उसका अब मेरा कल नहीं परसों लेक्चर होगा. ठीक है. लिख लेना एग्जाम्पल. एग्जाम्पल. इसका आंसर मुझे चाहिए. एक्स स्टार्टेड बिजनेस with rupees 15 lakhs cash, of which he borrowed rupees 3 lakhs from bank. Second, he got gift of rupees 8 lakhs from father-in-law. ऐसे ससुर सबको मिले. Father-in-law, right? Which he used for the business, which he brought into business. You have to think. मुझे परसों आंसर देना. Then third, he also brought botany brought, right? Laptop of rupees 30,000 या कुछ अलग लेता हूं. जनरली वही एग्जांपल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. 40,000 फर्नीचर of rupees 60,000, right? Shop of rupees 20 lakhs या मैं कुछ अलग वैल्यू रखता हूं, 30 lakhs. ठीक है. डिलीवरी व्हीकल from his personal sources.
into business. into business. ठीक है, find out the capital. ठीक है, दिस एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये आपको करना है, लिख लेना. ठीक है, एग्जांपल 2. ठीक है, X is owner of a bookshop. A. Bookshop purchased books. B. X went X paid hotel bill for his family. या एग्जांपल क्या क्या दे दो. X purchased gift for his daughter from his own money. X paid tuition fees from cash of business. बिजनेस की कैश है, उसमें से उसने उसके ट्यूशन फीस ऑफ डॉटर्स ट्यूशन फीस from the cash of the business. B. X purchased, right, TV for his house, for his home, and right, and टीवी हो गया, टीवी के बाद राइट X purchased AC, air condition for office business, bookstore. These are the yeah, this is E. These are the 5 transactions. 5 transactions आपको लिखना है, whether it right ये business transaction या personal transaction है. This is your homework. नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल को और आगे लेके जाएंगे, ड्राइंग समझेंगे, एसेट समझेंगे, लायबिलिटी समझेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट समझेंगे. ठीक है, सो ठीक है, सो ये 5 ट्रांजैक्शंस, इट इज योर टास्क. ठीक है, आप मुझे सैटरडे बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे यू हैव टू टेल मी द आंसर. आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन. इट इज होमवर्क फॉर यू. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, मैथ्स लेक्चर इज देयर टुमारो, माय लेक्चर इज नॉट देयर. ठीक है, accordingly I will WhatsApp on the group. Ma'am will also WhatsApp, ma'am is also on the group, so don't worry at all. Thank you.